नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. آمین یا رب العالمین. آج ہم دوبارہ سر عباد الرحمن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن عباد عبد کی جمع ہے اور بندے کو کہتے ہیں بندگی. الرحمن اللہ کی صفت ہے. وعباد الرحمن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے. جیسے کوئی اپنے ساتھ آپ کی نسبت جوڑے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری ٹیم کے لوگ ہیں یا میرے ساتھ رہنے والے ہیں. یعنی کسی کی کچھ خوبیوں کی وجہ سے جہاں ہمیں موقع ملتا ہے چاہے ہم ان کو اپنے ساتھ نسبت دے دیتے ہیں. چاہے اسی طرح انسانوں نے اپنی نسبت کو جب اللہ سے جوڑا تو اللہ نے اس نسبت کو قبول کیا اور ان کو کہا عباد الرحمن. یس بندہ خود کو بہت اسپیشل محسوس کرتا ہے جب کوئی اس کو اس طرح کا پروٹوکول دے کہ یہ میرے لوگ، یہ میری ساتھی، میری ٹیم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ اپنے ساتھی اپنے بندوں کو پروٹوکول دیا ہے کہ سب بندوں سے الگ تھلگ عباد الرحمن. تو جب ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ لفظ کہتے ہوئے اس دروازے میں انٹر جب ہو یا اللہ ہم تیرے بندوں کی صفات کی سیر تو کرنے لگے ہیں تو نیت یہ ہے کہ ہم یہاں جائیں تو ہم اس دروازے سے واپس نہ آئیں، انہی بندوں میں شامل ہو جائیں. یا اللہ ہمیں ایسا فہم، ایسی سمجھ اور شعور عطا کر کہ واپس عباد الشیطان میں نہ آئیں، عباد الدنیا میں نہ آئیں، عباد الرحمن میں ہی رہیں. اللہ زینا یہ وہ ہیں جو یمشونا جب چلتے ہیں اور ان کی چال کیسی ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون بڑی آہستگی سے، بڑی آرام سے، بڑی شائستگی سے، بڑے وقار سے، بڑے سکون کے ساتھ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے چلنے کا ذکر ہے کیونکہ چلنا انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کا دل، اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. لیکن انسان کا جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ اس کی باہر کی شخصیت ہے اور اس میں سب سے زیادہ انسان کس طرح سے چل رہا ہے یہ اس کی شخصیت کو واضح کرتا ہے. اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی. انسان کچھ بھی نہ بولے تو انسان چل بھی رہا ہو نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھدار بندہ چل رہا ہے، یہ بیوقوف بندہ چل رہا ہے، یہ جاہل بندہ چل رہا ہے. تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اب چلنے میں پیدل چلنا بھی آ جاتا ہے، گاڑی پہ چلنا بھی آ جاتا ہے، سوار ہو کر جانا. اور اب رستے میں
जब हम चलते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? जब आप चल रहे होते हैं तो आपको ना इतना आहिस्ता चलना चाहिए, ढीला ढीला सा जिस्म रख के कभी उधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, ऐसा चलना भी हाउनन में नहीं आता। हाउना का मतलब होता है कि आप ऐसा चलें कि जिसके अंदर आजिज़ी भी हो और जिसके अंदर रफ्तार भी अच्छी हो और जिसके अंदर तकब्बुर भी ना हो, अकड़ भी ना हो, गुरूर भी ना हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। आप यूँ चलते कि जैसे किसी ढलवान से उतर रहे हैं, लेकिन उस चलन के अंदर तकब्बुर, अकड़ नहीं थी। तो हमारी चाल भी चलते हुए बीमारों की तरह की नहीं होनी चाहिए, बेसमझ सी चाल कि हमारी ऐसे लगे जैसे कि हम पर्पसलेस बंदे हैं। जिनकी ज़िंदगियों में मकसद होता है, उनकी चालें एक्टिव होती हैं। जिनकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होता, उनके कदम मज़बूत नहीं होते। तो मोमिन जब कदम रखता है, तो उसके कदम ताकतवर होते हैं। उस उसको काम करने के अंदर जल्दी होती है। वो जल्दी से अपने काम निपटाता है, लेकिन उसकी जल्दी भी एतदाल में होती है। वो अपना टाइम फारिग औकात में ज़ाया नहीं करता। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े पर्पसफुल होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मकासद होते हैं, उनके चाल-चलन भी मकसद वाली नज़र आ रही होती है। वो इधर-उधर वक़्त नहीं ज़ाया करते। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा लेक्चर के क्लास भी मिस ना हो, वो फ़ौरन जल्दी-जल्दी से अपना वो सफ़र करते हैं। यानी उनके कदम आजिज़ होते हैं, लेकिन उनकी चलन अ, फारिग और बेपरवाह और इधर-उधर अपना वक़्त ज़ाया करने वाले लोगों जैसी नहीं होती। बिल्कुल फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है। वो खेलने-कूदते में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते। फिर इसी तरह चलते हुए इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि आप 2 लोग चल रहे हैं तो ऊँची-ऊँची आवाज़ से हँसना नहीं कि जिससे रास्ते के हकूक़ अदा ना हो। आप चल रहे हैं तो एक तो आपको थोड़ी अच्छी रफ़्तार रखनी है और कदम भी अकड़-अकड़ के रखने वाले नहीं होने चाहिए। इधर-उधर नज़रें दुकानों पे देखना, लोगों को घूरना, ये भी आपकी चलन को ख़राब करता है। फिर पीछे मुड़-मुड़ के देखना, इबादुर रहमान की ये भी सिफ़ात नहीं होती। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनकी नज़र सामने होती है, वो पीछे मुड़-मुड़ कर नहीं देखते। ज़िंदगी के हिस्सी तौर पर चलने में बड़ी मानवी तौर पर भी चलने में। उनकी चलन बहुत प्यारी होती है। अब देखिए पीछे जो है बात हुई जी बुरूज की, कि आसमान पर अल्लाह ताला ने बुर्ज बनाए, सितारे-सितारे। आप देखते हैं कि वो उनकी चलन कितनी प्यारी होती है। यानी पहले अल्लाह ने अपनी एक नेमत का ज़िक्र किया और इंसान कहीं न कहीं इंसान को उससे सीखने को मिलता है। वो इस तरह से कि जब आप बैठकर आसमान को देख रहे होते हैं ना, तो आपको सियारों सितारों की चमक कितनी पसंद आती है। देखते चले जाते हैं कितने आराम से, कितने लाखों करोड़ों की तादाद में वो अनगिनत है, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन आसमान पे कोई हलचल नहीं मची हुई, एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहे। एक-दूसरे के ऊपर चढ़े? बिल्कुल भी नहीं। बड़े आराम से, आहिस्तगी के साथ और उनको देखकर एक खूबसूरत मंज़र पैदा होता है। इबादुर-रहमान भी ऐसे होते हैं। ये नहीं होता कि हजूम में हों तो वो एक-दूसरे के ऊपर चढ़ाई करें। नहीं, उनकी चलन आहिस्ता होती है, अच्छी होती है, नॉर्मल होती है, पुरवकार होती है, शाइस्तगी वाली होती है, डिसेंट होती है, तहज़ीब वाली होती है, अपने घर में भी, अपने बाहर में भी। अब ये नहीं कि बाहर तो आप बड़े अच्छे वेल सेटल्ड होकर चलें और घर में आपको चलना ना आता हो। आप घर में भी मुख्तलिफ कामों के लिए इधर-उधर चल रहे होते हैं, तो आपके उस चलने में भी कदम मज़बूत होने चाहिए। आप सीढ़ियों पे चढ़े हैं, तो आपकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी आपके कदम मज़बूत हों, आप पुरवकार हों और आपकी ज़िंदगी में मकसद हो। फिर देखिएगा आपका चलना भी आपके लिए अजर का बायस बन जाएगा। तो इंसान अपने चाल से पहचाना जाता है। अपनी चाल को दुरुस्त करें। रास्ते में हो, घर में हो, हजूम में हो, किसी अदारे में हो या फिर आप अपनी सुबह जिन कदमों से चलकर कुरान के लिए आते हैं, उन कदमों पर भी गौर करें।
कहीं वो वैसे कदम तो नहीं होते कनूदगी के अंदर, इधर उधर बीमारों की तरह वाले कदम। इसीलिए तो आके हम कुरान को भी फिर वैसे ही सीखते हैं। तो रहमान के, इबादुर रहमान का हर कदम हाउडन होता है, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, शाइस्तगी वाला, पुरवकार होता है। अपने हर कदम पे गौर करना। जब इबादुर रहमान अपने कदमों पे गौर करते हैं ना, यकीन जाने गुनाह भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये कदम ही है जिन पर चलकर हम गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमें पता होगा कि मैं तो इबादुर रहमान बनने के लिए निकली हूँ, तो उसमें तो पहला स्टेप ही है कि अपने कदमों को, अपनी चाल को दुरुस्त करना है। तो अब इस चाल को मैं दुरुस्त करने के लिए जिस तरफ मैं चल के जा रही हूँ, उस डायरेक्शन को भी सीखना है मुझे। इबादुर रहमान के इकदामात डायरेक्शन लेस नहीं होते। ठीक है, इबादुर रहमान के इकदामात जो हैं, उनकी एक बेहतरीन डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो इबादुर रहमान बनने के लिए निकले होते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? अपने कदमों पर गौर करना है, रास्ते के हकूक जानने की कोशिश करनी है, लोगों के लिए अपने आप को बेज़र बनाना है, लोगों को तकलीफ नहीं देनी। लोगों के साथ जब आप रास्ते में हैं, तो रास्ते में जा रहे हैं, तो लोगों का रास्ता रोकना भी रास्ते के हकूक के खिलाफ। जैसे लोग अपनी गाड़ियों की वजह से रास्ते को रोक देते हैं ना, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम गुजर रहे हैं या जा रहे हैं, गाड़ी पे हैं, या जिस तरह से भी हैं, हमारी कोशिश हो किसी तरह से भी लोगों को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। बड़ी गाड़ी में बैठ जाने से इंसान को अपने आंखें माथे पे नहीं रख देनी चाहिए। जी, हारन ज्यादा ना बजाएं। ठीक है, कहीं पे भी हो, ऊंची ऊंची आवाज, जैसे आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो पीछे लोगों को ऊंची ऊंची आवाज से बुला रहे होते हैं, ये भी दुरुस्त बात। ठीक है, रास्ते में ऊंची ऊंची आवाज से किसी को पुकारना, चाहे कोई दूर चला जाता है, आप कॉल करें नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जहां जा रहे हैं वहां जाने का मकसद भी अच्छा हो, चाल भी अच्छी हो। पहला काम आपको पता है। अब ये आगे हम अब्दुल रहमान के जो सिफात पढ़ेंगे ना, तो उनका बहुत गहरा ताल्लुक है, एक ये सिफ्त से और एक जो भी वखातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह लुक़मान आयत 18 में भी हमें फरमाते हैं जी, बल्कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत भी की थी, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। जमीन पर अकड़ के ना चल, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले, फख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। और अबू तुफैल रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि आप सफेद रंग और इंतहाई खूबसूरत थे, जब चलते तो गोया डहलवान में उतर रहे। तो जमीन पर नरमी के साथ चलने में आम जिंदगी का चाल चलन भी शामिल होता है, क्योंकि इंसान की चाल उसके चलन ही के मुताबिक होती है। तो रहमान के बंदों की चाल, उनका चलन दोनों में तवाज़ी होती है, नरमी होती है, तकब्बुर नहीं होता, शिद्दत नहीं होती। व इदा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब वो मुहातिब होते हैं, ख़ातबा, ख़ातबा से है ख़ातबा, जब वो मुखातिब होते हैं, जाहिलून, जाहिलों से, जाहिलून किससे है? जहल से। जीम हा लाम इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है, जहल जो है ये अनपढ़ के मुकाबले में भी आता है। जैसे पढ़ा लिखा, और दूसरा कौन सा होगा? जाहिल होगा। और फिर जहल जो है पढ़े लिखे के लिए भी आता है। ऐसा पढ़ा लिखा जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना जानने, यानी पढ़ लिख कर भी वो बेसमझ सा हो,
उसको फिर बेवकूफ कहते हैं, बेवकूफ बनना, उजटपन। फिर इसी तरह जाहिलतिल कद्र कहते हैं बहुत उबलना, आंटी का बहुत ज्यादा उबलना, यानी ऐसा बंदा जो उबल उबल पड़ता है, जो आपे से बाहर हो जाता है। फिर जाहलहू नादानी में मुकाबला करना, यानी एक बंदा बेवकूफ है तो हम भी बेवकूफ बनने के लिए कंपटीशन करें कि उस वो बेवकूफियां कर रहा है तो दूसरा उससे ज्यादा बेवकूफी करे। तो जाहिलहू नादानी में मुकाबला करना, बदसलूकी करना। फिर अल जहूल कहते हैं ना तजर्बाकार जाहिल, और जाहिलिया नादानी की हालत, जैसे इस्लाम से पहले जो बुत प्रस्ती थी, जाहिलियत का जमाना उसे कहा जाता है। तो जाहिल कौन है? जो बदसलूकी करता है, जो अनपढ़ होता है, जो बेवकूफ होता है, जिसके अंदर उजटपन होता है, जो आपे से बाहर हो जाता है, जो उबल उबल पड़ता है, जो आग बगोला हो जाता है, छोटी छोटी बहस पर लंबी लंबी बहस शुरू कर देता है, और फिर न तजर्बाकार होता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन खुद को समझदार समझ रहा होता है। अंगाड़े, जैसे कहते हैं ना, जो बंदा माचिस की तरह आग लगाने की कोशिश करता है, तो ऐसे बंदे के साथ आप तो समझ आ गई कि हमारा मुकाबला जब ऐसे लोगों से हो। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग सामने रखे होंगे, हम खुद भी होते हैं दूसरों के लिए। वो इदा खातबहुमुल जाहिलून, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? एक्ट तो कर लिया उन्होंने, हमारा रिएक्ट क्या है, हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। अमूमन जो लोग हमारे साथ अच्छी बात करते हैं उनके साथ अच्छी बात करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इंसान को हमेशा वैसी बात करता है जैसे सामने वाला करता है, और इट्स सो इजी। लेकिन असल मुश्किल ये है कि जब कोई आपसे उबल उबल कर बात कर रहा हो, नादानी से, बेवकूफी से, बेवजह भड़कने वाली बातें कर रहा हो, तो उस वक्त आप क्या करें? कौलू सलाम। तो इबादुर रहमान क्या करते हैं? सलाम, वो सलाम कह देते हैं। जी, पढ़ा लिखा अनपढ़ में आज फर्क यही है, शऊर का। आप दुनिया या दीन का दोनों पढ़े लिखे ले लें, लेकिन जिसके अंदर शऊर नहीं है, वो फिर जाहिर बात है, जिसके जिसके अंदर बदसलूकी, शऊर नहीं है और बात करने का तरीका नहीं है, तो जाहिर बात है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो अब इबादुर रहमान उनको जज नहीं करते, बल्कि सलाम कहकर उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। बेवजह बहस में नहीं पड़ते, बात को कंट्रोल करने की, समझाने की उनको कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आपका पॉजिटिव रिस्पांस भी कोई असर नहीं करता उन पर। उस वक्त आप क्या करें? यानी कोई आपके साथ बेवजह बहस करता जा रहा है, आप इधर उधर की बातें करने की करके उस मौजू को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बहस ना ही छिड़े तो अच्छी बात है, इससे फसाद पैदा होगा, माहौल खराब होगा, मजलिस खराब होगा। कुछ लोग ना बड़े टॉन्ट करने वाले, छोटी छोटी बातों पर तंज तनकीद करने वाले और आग बगोला हो जाने वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं, और कूलनेस नहीं उनके अंदर होती। तो फिर पता है क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाल मटोल करके ना, तो बातों को इधर उधर करने की कोशिश किया करें। लेकिन जब बात हद से बढ़ने लगी, फिर क्या करना है? जगह छोड़ देनी है। इबादुर रहमान क्या करते हैं? वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ सलाम होगा सलाम मुतारका, यानी एक सलाम होता है जब हम जा रहे होते हैं किसी के पास, जाके सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं, और एक आते हुए अलविदा इस्लाम लेके आते हैं, उस इस्लाम में गुड बाय कहते हैं जिसे आप। तो इसके, इस आयत के दो मतलब होंगे। पहला मतलब तो ये है कि पूरी कोशिश करते हैं इबादुर रहमान सामने वाले को कूल करने की, ठंडा करने की, इधर उधर की बात से उस मौजू को, बेवजह बहस को खत्म करने की, हिकमत से काम लेने की। लेकिन जब कोई ना हो सके, वो ठंडा नहीं हो रहा, उस आग में झुलसने की बजाय सलाम लेते हैं हिकमत के साथ, और उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, चाहे लोग ये समझे कि ये हार गया है इसको। अक्सर लोग आपको कहेंगे ना, अच्छा इसका बात नहीं ना, ये तो ये चुप करके चला गया। ऐसे भी लोग कहते हैं। आप इस तंज को सुनकर पीछे मुड़कर
बहस का हिस्सा नहीं बनिएगा। कोई नहीं, लोग आपका रवाजी कसने हंस रहे हैं, आपने तो इबादुर रहमान बनना है ना, तो आपने खामोशी से लोग आपको कमजोर समझे, क्योंकि बहादुर तो वो है जो लड़ाई छोड़ देता है। बहादुर वो नहीं है जो लंबी लंबी जुबानें चलाता है। बहादुर असल में होता ही वो है जो बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। तो वो इबादुर रहमान होते हैं, क्या करते हैं, बात बदल कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब अपने वालिद को छोड़ा, जब उनके वालिद जहालत पे उतर आए, सूरत मरियम के अंदर है, कहा कौला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी, कि सलाम हो तुझ पर, अन करीब मैं तेरे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगूंगा। तो इस आयत में दो बातों का जिक्र है, चाल का, गुफ्तगू का, दोनों चीजों में इतदाल और दुरुस्तगी, इंसान के औकात को, इंसान की एनर्जी को, इंसान की वक्त, एनर्जी, सलाहियत, इन दोनों को सही तौर पर इस्तेमाल करने का सबब बनती है। क्योंकि जो बंदा बेकार बातों में उलझता है, जो बंदा बेकार यानी पर्पसलेस होता है, मकसद के बगैर चलता है, मकसद के बगैर बोलता है, तो इंसान अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रहा है? बेफायदा बातों में। एनर्जी तो फायदा बातों में भी लगती है, प्रोडक्टिव वर्क्स में भी लगती है, अनप्रोडक्टिव वर्क में भी लगती है। जब एनर्जी हम अनप्रोडक्टिव चीजों पे लगाते हैं, बेफायदा चीजों पे लगाते हैं, हमारी एनर्जी जाया हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाता है, फिर अच्छे कामों के लिए एनर्जी नहीं रहती, और थक हार कर इंसान सो जाता है। और जब इंसान थक हार कर सो जाता है, तो फिर इंसान, फिर वो जो अगली सिफ्त इबादुर रहमान की आती है जी, कि वो रात को अल्लाह के साथ बातचीत करते हैं, तो फिर वो नहीं होता। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है, तो फिर आप फ्रेश फ्रेश सोते हैं, आप जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश फ्रेश उठेंगे। लेकिन जब आप रात को बहस करते हुए लड़ते झगड़ते, और फिर आपके दिन में लड़ाई होती है, रात को जब आप सोने लगते हैं, सारी बातें ज़हन में घूम रही होती है, कभी कोई बात आकर आपको डिस्टर्ब करती है। जब आपने अल्लाह की रजा के लिए झगड़ा छोड़ा होगा, आपको पता होगा कि मेरा तो जन्नत में घर बन रहा है, तो जिसकी बिल्डिंग तमीर हो रही हो, आपकी छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करें, तो कितनी खुशी होती है, रात को खुशी से नींद नहीं आती और इंसान इतना फ्रेश फील करता है। तो जिसको ये पता चला कि मैंने आज झगड़ा छोड़ दिया, किसी की तल्ख बातों का जवाब मैंने पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे रवैये के साथ दिया, मुझे यकीन है मेरा रब जन्नत के वस्त में मेरा घर बनाएगा। तो वो बंदा कितना फ्रेश होकर सोएगा, और रात को उठकर अल्लाह की इबादत में भी मशगूल होने का दिल करेगा, सुबह वक्त पे उठेगा, रात को खूबसूरत नींद सोएगा। तो पता क्या चला कि जो हमारी नींदें खराब हो रही हैं, ये हमारी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी दो वजूहात हैं। हमारी चलन, हमारी चाल ठीक नहीं, और हमारा कलाम ठीक नहीं। इन दोनों पे काम करें, अपनी गुफ्तगू पर, अपने कदमों पर। ये दोनों ठीक हो जाएंगे, हमारा वक्त भी मैनेज हो जाएगा, हमारी सलाहियतें भी बढ़ जाएंगी, हमारी एनर्जी भी बढ़ जाएंगी, और हम एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इबादुर रहमान की जब ये दो सिफात आ गई, तो अगली अपनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में नफ्स को मारना है, इन दोनों में अपने आप को खुद ठीक करना है, कोई नहीं ठीक कर सकता, ना इनकी ट्रेनिंग हो सकती है, ये आपने खुद ट्रेनिंग करनी है, खुद ट्रेनिंग लेनी है अपनी जात के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब के इखलाक को अच्छा करे, हमारी चाल को अच्छा करे, हमारे कदमों को अच्छा करे, हमारी जिंदगी के चलन को अल्लाह अच्छा करे, हमारे किरदार को अच्छा करे। और जब हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से हो जिनकी हमें समझ ही नहीं आती, हमारी समझ से बाहर है, अल्लाह हमें उनको ठंडा करने की तौफीक दे। अगर हम ठंडा ना कर सकते, अल्लाह हमें बर्दाश्त करने और वहां से उठ जाने की तौफीक भी अल्लाह अता करे। इसके बारे में हदीस भी है ना एक, कि सही मुस्लिम की एक हदीस है कि एक अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया है, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं इनसे मिलाता हूँ, वो मुझसे पता तौलकी करते हैं, मैं इनसे एहसान करता हूँ, वो मुझसे बदसलूकी करते हैं, मैं इनसे हिल्म इख्तियार करता हूँ, और मुझ पर जहालत करते हैं। ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो,
تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گی، ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا گویا کہ اس کے منہ میں گرم راکھ ڈالنا ہے۔ اور وہ کون ڈالتا ہے، وہ کون مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے نا، کہ جب وہ آپس میں کسی کے ساتھ ہو رہی تھی بحث، تو وہ چپ تھے تو فرشتے آ کے جواب دے رہے تھے، جب انہوں نے ایک لب کشائی کی تو فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی اگر فرشتے منگوانے ہیں نا، تو اس کے لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ضرب کی بات ہے، برداشت کی بات ہے۔ اللہ سب کو یہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔